Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. I am back with another episode, and today, I know by now you would understand the theme of this series that we're not only discussing the academic lives of our individuals, but the extracurriculars go hand in hand. So, I am your host, Aliza Nakvi, and today I have an exhilarating personality with me here. He is an ACCA member and an MBA, currently working in Enduring Planet USA. Now, he has a lot of different aspects to his personality. He is a writer, a narrator, a public speaker. He has performed on various platforms on national television that includes Geo, Hum TV, PTV, and many more. So, other than that, he is also the ex president and member of the Banis Literary Society, which is indeed something I really want to delve into. So, a very warm welcome to Mr. Balajawan. Hey, like, thank you for that introduction. It was I like a recap of what I've been doing, what I did. Thank you for that. You're welcome. How have you been? I'm good. I've been good. I've been good. It's nice. That's why I'm here to feel more good, feel better. I'm good. All right. So, before we get into the details, I want you to think of one word that would define your life up till now, or that would define where you currently are, and events that led you to where you are today. It could be anything, it could be something that brings you peace, or that you're now, calm and composed. Like you've been so excited throughout your journey, and now you're just sort of calm, letting things in. Like just one word that would define you currently and entirely. Electrifying. Okay. Not in that sense that I'm energetic or something, but in a sense, you have seen electricity like that, those thunders that come थोड़े थोड़े time बाद, but every it shakes up everything, right? Yeah. So I think that's how my life has been. Whether you call about the achievements or the failures or Okay. my presence at places, it's been like that thunder, right? तो वो बिजली की तरह आता था. It used to light it up or it used to scare me, and then it went away. तो आता था तो ऑल एट वंस या आता ही नहीं था? बस थोड़ा थोड़ा करके आता था. और एकदम ऑल एट एकदम वंस? yeah, या ओके. yeah, ठीक है, वंडरफुल. आई थिंक दैट्स अ प्रीटी वाइज वे टू डिस्क्राइब योरसेल्फ. yeah, but it was fun. फिर once पहले पहले डर लगता है with that thunder, but once you're a fan of the rainy season, you're into it. And once you get used to how you function, this is Yeah, you get familiar with yourself. exactly. So that's how I'm going to describe it. And then you use it to your benefit. Yeah, call me electrifying. Okay, Mr. Electrifying. Let's delve now into straight your college and क्या choose किया था, क्या पढ़ा था, and how did you come into CA? First you were doing CA and then you opted for ACCA. Yeah. So all of that with you being the thunder that you are, let's just go straight into it. Okay. So I did my metric in computer science, and अच्छा choose तो कभी भी खुद से कुछ नहीं किया, हमेशा choose कराया गया, right? With Oh. people, with I had that advisors with me. Advisors we don't want, But we get it. but we get. So I did my computer science in metric, and after that I chose uh, pre-engineering because we were told at the time, and which was true, that with pre-engineering in your hand, you have a lot more options. You could go either to engineering, you could go to finance, you could go to other business degrees Yeah. as well. So I chose pre-engineering, and once I was done with it, I still had no clue at that point कि मैं कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँगा. बट आई वॉज क्लियर कि इंजीनियरिंग तो नहीं करूँगा क्योंकि मेरी केमिस्ट्री के साथ अच्छी बातचीत नहीं थी. तो मतलब इसीलिए मैं उससे बुक भी नहीं खोलता था. हमारी बात अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी. तो आई न्यू कि मैं इंजीनियरिंग तो नहीं करूँगा. ठीक है. So I have this friend of mine. He wanted to choose this path. Like he wanted to go to finance, and I had two other best friends who flew to some other country, who flew to New Zealand at that point of time, Long and distance. yeah, so they pursued engineering there, right? ठीक है. And it's good because वहाँ की इंडस्ट्री अच्छी है, वहाँ की चीज़ें अच्छी हैं. यहाँ पे engineering का कोई उस point पे नज़र नहीं आ रहा था. So me and my other friend, we started studying for
the IBA, Oh, and guess what? he नहीं got हुआ, in. दोनों का नहीं दोनों हुआ? का नहीं हुआ. अच्छा. So, और you know it कि जिसका IBA में नहीं होता वो कहाँ जाता है? CBM. हाँ. अच्छा अच्छा, अभी Yeah. सीए नहीं आया था. नहीं नहीं नहीं. So Okay. मैं CBM का एग्जाम दिया, CBM पास किया, CBM का इंटरव्यू दिया. So they were like, okay, फीस जमा कराएं, आ जाएं, पढ़ाई करें. अच्छा. But I was just passing by, and someone again, those financial advisors, they were like, why not CA and why not TSA? So at that point, मेरा एडमिशन हो चुका था at CBM, ठीक है. but I just came to TSA to see what CA is, what chartered accountancy is. And Okay. you know what's chartered accountancy? What? It's a signature qualification. Ooh. It's a सुनने में बहुत फैंसी है. it's everything, right? It's everything you could dream of. Okay. That's what I was told, and that's what it is, right? It is fancy indeed. Yeah. So at that point, when I came in, I started seeing things. I in the reception area with all mentors we had. So they told me these are the papers. That's how you do it. 6 months module A, 2 years. The rest of the Yeah. modules, then 3.5 साल articleship, and Boom. boom. Wow. आपको भी यही बताया था. मैंने सुना तो यही है. Okay, so and boom, you are a chartered accountant and you are an auditor and you are on your pathway to be a partner in a firm or somewhere. It was like pretty cool. Why not? Okay. Who doesn't want it, right? Yeah. किसको नहीं करना है? So at that point, I was like, मैंने अपने दोस्त को फोन किया क्योंकि मेरी तो जॉब लग चुकी थी. मैं तो था, मैंने कहा तुम जाओ अपनी पढ़ो जाके, हम गरीबों से, मैंने कहा आज का फोन वोन नहीं करना, हम गरीबों से बात नहीं करते. तो 7 months down the lane, 6 months down the lane, मैंने उसको कॉल की. अच्छा. कॉल कर लिया करो कभी कभी, याद कर लिया करो. So that, okay, jokes aside, the module A went bomb. अच्छा. जबरदस्त. अच्छा अच्छा. ऐसे Okay. सबका जाता है, मतलब अच्छा, you know, ठीक है. जब मॉड्यूल ए पास होता है वो लिखते हैं लोग 25% CA done, 75% to go, right? Okay. So हमने भी कुछ यूँ ही लिखा कि भाई इतना हो गया, इतना रहता है. कोई भी हमसे स्टेटस अपडेट कर दिया. हाँ कि सब भाई हो गया, अब तो कुछ मसला ही नहीं है जिंदगी में, आ जाओ. But still in my mind, because my sister एक साल मुझसे सीनियर है, and she was in university, and my other friends were in universities, and just because मुझे थोड़ा सा स्टेज का शौक था, I was a people's person, and I wanted to show, I wanted to talk. यहाँ पे वो चीज़ें फॉलो नहीं होती थी, just because यहाँ टाइम टेबल्स उस तरह नहीं होते. यहाँ कभी शाम में है, कभी सुबह है. Yeah. फिर यहाँ कोई प्रेजेंटेशंस नहीं है, यहाँ पे ग्रुप आउटिंग्स नहीं है, यूनिफॉर्म है. तो बहुत सारी चीज़ें जो उस वक्त अच्छी नहीं लगती थी. उस वक्त ऐसा लगता था कि ये सब माहौल शायद हम लोगों ने कॉलेज में देख लिया है, अब हमें यूनिवर्सिटी लाइफ देखनी है जहाँ पे होली हो रही है, जहाँ पे करेक्टर डेज हो रहे हैं, जहाँ पे इतना कुछ हो रहा है. तो दैट यूज्ड टू अट्रैक्ट मी लॉट. लाइक सबसे ज़्यादा तो जो प्रेजेंटेशंस वाला सीन था ना, कि बिकॉज आई लाइक पब्लिक स्पीकिंग अलॉट, मैंने उस तरह उसको परस्यू एट दैट पॉइंट नहीं किया था. सो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरी सिस्टर कहती थी आई हैव अ प्रेजेंटेशन, आई हैव टू प्रेजेंट दिस टॉपिक टुमारो. सो आई स्टिल वांटेड टू गो बैक टू अ यूनिवर्सिटी. अच्छा. सो आई गेस व्हाट आई जो अगला साल आया, आई स्टार्टेड गिविंग एग्जाम्स अगेन. Of CA. No, I skipped the CA attempt and I Okay. started giving universities exams again. Okay. Just because उस वक्त मैंने नहीं लिया था, तो I have to go all over again, ठीक right? है. But still, I felt at that point, जब एक साल गुजर गया था, क्योंकि मॉड्यूल ए हुआ और अगले टाइम मैंने मिस की. सो जब एक साल गुजर गया, सो what I was seeing that my friends are gradually going ahead. If I don't do it, if I don't take things seriously now, I am left behind. Yeah. Right? So देखते ही देखते I started giving exams again. ठीक है. अब what was the bad part of it, of being double minded, कि जो सेटबैक आपको, लेट्स सपोज कुछ लोग धक्का स्टार्ट होते हैं, जैसे मैं धक्का स्टार्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा पेपर देता हूँ अगर मैं पिछले अटेम्प्ट में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म ना करूँ तो, राइट? Okay. सो मैंने तो वो अटेम्प्ट दी नहीं,
जिसमें मुझे अपेरेंटली फेल होना चाहिए था, और वहाँ से अपनी ज़िंदगी में कम बैक करके मुझे Hmm. अच्छे स्कोर्स लाके एक अपनी क्वालिफिकेशन को आगे बढ़ाना चाहिए था। अच्छा, तो you're in the phase of a regret right now. या ठीक है. रिग्रेट, रिमोर्स, एवरीथिंग, बट Okay. स्टिल इट्स, ये तो अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी Hmm. तो डिप्रेशन भी आना आगे। एनीवे, सो एट दैट पॉइंट जब मैं सोच रहा हूँ कि डबल माइंडेड हूँ, और वहाँ पे आई एम, बट स्टिल व्हेन आई कम बैक फॉर माई एग्जाम्स एंड आई गिव अटेम्प्ट फ्रॉम TSA, रिफ्रेशर्स लेके, वर्कशॉप्स लेके, सो अगेन मैं हूँ तो अभी भी एक सेकेंड ईयर माइंडसेट का बच्चा, Yeah. जिसको लगता है कि 5 ईयर पढ़ के पेपर पास हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अभी वो वाली पहली अटेम्प्ट दी नहीं। उस पॉइंट पे वो डबल माइंडेड था कि मुझे यूनिवर्सिटी वापस जाना है, या फिर मुझे CA ही या अकाउंटेंसी डिग्री ही परस्यू करनी है, Yeah. राइट? सो अगेन व्हाट हैपन्स, कि जो सबके साथ होता है कि पेपर आर फ्लंकिंग एट 47, 48, Okay. एंड नाउ अब मेरे अंदर से वो बात आती है कि अब मुझे पढ़ना चाहिए। अब मैं दोबारा पढ़ के देता हूँ, तो ये बात तो आपको पता है ना कि अगर आप ना पढ़ के दो तो 46, 47 आते हैं, पढ़ के दो तो 49 आते हैं। Oh. तो अच्छा. सो दिस इज व्हाट हैपेंड, एंड सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 2 साल गुजर चुके थे, अच्छा. राइट? And you're still अब मतलब thinking about CA, अभी तक switch नहीं आई एम हुआ. स्टिल, आई हैवंट स्विच्ड, ठीक है. एंड आई हैवंट सीन इट। ये वो पॉइंट आ गया मेरी लाइफ में जब माई पेरेंट्स आर सेइंग कि Worried. ओके, reconsider a decision, ठीक है. either go to university, start doing BPA, start doing ACF, do something, and but just don't look back, ठीक है. ठीक है? एंड इस तरह देखना नहीं। सो बट स्टिल मेरा उस वक्त डिसीजन पॉइंट ये था मेरा कि इफ़ आई सी माई फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे साथ सेकेंड ईयर किया है, दोज गाइज आर इन देयर 5th सेमेस्टर, उनके 2 साल उनके तो मस्ती मजाक में भी, या ऑब्वियसली उन्होंने पढ़ाई भी की ही होगी, और व्हाट आई सी के 2 साल बाद दे आर 2.5 years सीनियर्स टू मी, And I'm still over there. एंड आई एम स्टिल ओवर देयर। व्हाट एम आई? अगर मेरा भले मॉड्यूल ए पास भी हुआ है, इट डजंट काउंट दैट मच, राइट? Yeah. व्हाट आई एम डूइंग, आई एम स्टिल अ सेकेंड ईयर गाय, जिसके सिर्फ Yeah. मार्क्स, जिसके लास्ट जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो यही है. दैट इज Second सेकेंड year. ईयर। फिजिक्स में अच्छे मार्क्स, मैथ्स में अच्छे मार्क्स, दैट्स इट। केमिस्ट्री से तो बातचीत ही नहीं थी। तो दिस इज द ओनली एकेडमिक अचीवमेंट आई हैड, ठीक है. and I see other friends. If I saw my sister, I look up to her. I still look up to her, and she was getting scholarships because of her being a bright student. I see my friends जो कि बात अब ये नहीं कर रहे कि हम क्या कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं ये ख़त्म होगा तो हम CFA करेंगे, हम MBA करेंगे, हम ये Okay. करेंगे। अब ठीक तो है. ये वाली डिग्री तो बात ही नहीं है, और अब तो रिलेट भी नहीं कर पा रहे आप और अब उनसे. तो मैं आई एम जस्ट वेयर एम आई, राइट? ठीक है. फिर I was down. Okay. I didn't know that how would I make a comeback. ठीक है. I was done. I was dusted. क्यों? क्योंकि बहुत एट दिस पॉइंट जो लोग फेलियर से गुजर रहे होते हैं और जिस पॉइंट पे उनको कम बैक करना होता है, देयर इज वन थिंग जो उनको रोक रही होती है, दैट इज द इन्वायरमेंट, द पीपल अराउंड देम, एंड इट कुड बी देयर रिलेटिव्स, इट कुड बी देयर फ्रेंड्स, एंड और यही लोग अगर अच्छे हों तो यही लोग उसको कम बैक में हेल्प कर रहे होते हैं, राइट? सो और तीसरी चीज़ जो उसको खुद रोक रही होती है, दैट इज हिमसेल्फ, वो क्योंकि तो रिग्रेट और definitely. रिमोर्स इतना एक्सट्रीम होता है दैट आपको कोई बात ना भी की हो तो आपको लग रहा होता है कि इसने ये मुझे की है। लेट्स सपोज यू आर इन अ गैदरिंग विद फैमिली जहाँ पे सबसे बात हो रही है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। Yeah. इवन कोई मैट्रिक का बच्चा भी बोलता है कि आई पास्ड, सबके मैट्रिक आपने कब किया होता है, एंड यू फील कि शायद ये मुझ पे टारगेट है कि ही पास्ड हिज एग्जाम एंड आई कुडंट डू माइन। And I'm sure a lot of people relate to A this lot of because people, a lot this of people, is what people go through. a lot of people go through this, And it's okay. and I've seen my friends going through it, right? I've seen their bad times. I've picked up calls of them when they're saying that I wish I get an accident today. I wish, like, आप सुन भी नहीं सकते at that point, right? And
जिस उस पॉइंट पे आप खुद भी उस चीज़ से गुजर रहे होते हैं, एंड यू आर टेलिंग देम नो एवरीथिंग्स गोना बी ऑलराइट, लेकिन ये तो आप उसको बता रहे हो, आपको कौन बताएगा, Yeah. राइट? ऐसे पॉइंट पे आपके कुछ मेंटोर्स आते हैं, एंड आई मैं एट दैट पॉइंट आईड से इट वाज मिस नादिया टू अच्छा. मी एंड टू a lot of other people. And उस point पे जिस point पे TSA had a lot of competition in terms of RATs, people were going, people were coming, but she was a person, she was holding a lot of people who were here for that motivation, who were just here to hear कि भाई it's okay from her, right? So she asked me कि there is one thing, one way that देखो मेहनत तो आपको करनी है, यू हैव टू गो देयर, राइट? बट देयर इज वन वे यू कैन गो कि अगर तुम लेट्स सपोज everything is right, let's say the road is right, you the vehicle you are good, and if you do ACCA from now आपका टाइम बच जाएगा, you don't have to wait for like 4 5 years to get a degree. Yeah. If you do it completely fine सही तरीके से, you can do it within 3 years. तो एक रे ऑफ लाइट आई सो जिंदगी इट वॉज अ में. रे ऑफ लाइट कि मैंने अगर 2 साल ज़ाया किए हैं और मैं 3 साल में ये कर लूँ, तो मेरा एकेडमिक जर्नी 5 साल की हो जाएगी, एंड दैट्स ओके. Yeah. तो बाकी जो जिन लोगों ने सेकेंड ईयर के बाद यूनिवर्सिटी शुरू की है तो ठीक है, 6 8 महीने उन्हें भी टेस्ट वगैरह देने में लगाए और फिर ओके 4 6 महीने का फ़र्क आएगा, दैट्स ओके. उतने टाइम में उनकी डिग्री पब्लिश हो जाएगी, ओके मैं एक और अटैम्प्ट दे दूंगा, ठीक है. राइट? तो I was like, okay. Then I went to Sarejaz. That was the first time I was seeing him. And I was like, sir. And I was amazed that that person, I didn't know that I'm going to start looking up to him. That person had a similar journey, Yeah. right? And I was like, okay, sir, let's back up. So I came back home. And my father ko, अच्छा, my educational decisions, my father was a lot more interested in it, right? What are you doing? How are you going to do it? How it's going to be done? So, and he was always motivating कि okay, do it. So, मैंने उनको ये बताया कि I want to do ACCA. He was still of the mind कि just because एक setback हो चुका था in a qualification, in a certification के until and unless you don't pass the exam, you don't pass the exam, right? But in other forms of like degrees या कुछ ये होता है कि if you fail exam कोई मसला नहीं है, if you have done quizzes, if you have done presentations, if you have done your mates, and if you are like good with teacher, you have your class participation, Yeah. so there's a chance आप C D पे भी pass कर लोगे, you're not gonna stop. So वो तो यहाँ होता नहीं है. वो यहाँ होता नहीं है, राइट? मैंने ना पढ़ के 49 आते. सो एट दैट पॉइंट दैट वाज स्टिल एन इशू, एंड इट इज एन इशू, राइट? ACCA is not easy. Yeah. People flunk at 49, people flunk at 48. I did. वो अभी जहाँ जो जर्नी शुरू हो रही है वो अलग है. सो आई स्टार्टेड थिंकिंग, reconsidering my decisions कि ठीक है. if I ever come back and if I continue this, तो ये चीज़ तो दोबारा देखनी पड़ेगी. सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे, व्हाट शुड आई डू कि मुझे ये चीज़ें ना देखनी पड़े. सो अगेन आई वाज लाइक लेट्स डू इट. ठीक है. क्योंकि उस पॉइंट पे बीकॉम के एग्जाम्स चल रहे थे, पार्ट 1 दे दिया था, CA के एग्जाम्स दिए थे, नहीं हुए, बट पढ़ाई तो की भी थी. सो आई स्टार्टेड टेकिंग स्मॉल स्टेप्स, ठीक है. एंड वहाँ मुझे समझ आना शुरू हुआ कि ACCA इज़ द नेम ऑफ अ माइंडसेट. ACCA करना, यू नीड अ माइंडसेट. स्टडीज़ तो अपनी जगह हैं, बट आपने देखा होगा बहुत से लोग पढ़ के भी नहीं पास होते, या बहुत से लोग पढ़ के भी नहीं कर पाते. बहुत से लोग एक पॉइंट तक अच्छे पेपर्स कर लेते हैं, आखिरी 2 3 आते हैं तो ढीले पड़ जाते हैं. सो ACCA इज़ अ माइंडसेट. आप ये देख लीजिएगा, जिस जिस शख्स का ACCA हुआ हुआ है, जो पढ़ाई करता है, जो कि आगे चल रहा है, ही हैज़ अ माइंडसेट, Yeah. राइट? सो एट दैट पॉइंट आई स्टार्टेड डिगिंग इनटू थिंग्स. मैंने बुक्स लेना शुरू की, ख़रीदना शुरू की, पूरा गेम प्लान प्रिपेयर पूरा हुआ. गेम प्लान किया कि भाई किन पेपर से स्टार्ट करना है ठीक है. एंड हाउ टू डू इट. सो आई थिंक देयर वाज दिस 2 weeks रिफ्रेशर.
आई डोंट नो, रिफ्रेशर ये टर्मिनोलॉजी का लफ्ज़ है, यहाँ ज़्यादा यूज़ होता है, वहाँ आई डोंट नो क्या कहते हैं इसे। नहीं, रिफ्रेशर होता ही नहीं है सीसीए में। लेकिन एक वहाँ कुछ क्लास, शॉर्ट क्लास होती है, 2-3 हफ्ते की होती ओके। है, राइट? तो जो शुरू, बेसिकली F2 की क्लास उन बच्चों के लिए होती है जो MA2 पढ़ के आ रहे होते हैं। वो एक, देयर इज दिस शॉर्ट क्लास, उसका नाम पता नहीं क्या देते हैं, क्योंकि MA2 और F2 का बहुत सिमिलर या है, सो वो 2-3 हफ्ते की होती है। ठीक है। तो मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग कभी नहीं पढ़ी थी, बट आई वॉज सो मच, मेरा सर एजाज के साथ वो ताल्लुक बनना शुरू हो गया था, वो कि मुझे बस ट्रस्ट था उन पे कि मैं 2 हफ्ते भी पढ़ूंगा तो हो जाएगा। तो आई वॉज डूइंग माई BCom की पढ़ाई एक प्राइवेट ट्यूशन पे मैं कर रहा था, और वहाँ पे फिर आई स्टार्टेड, वो रोज़ एक दिन छोड़ के क्लास होती थी, तो आई स्टार्टेड सीइंग इट। मैथ्स वगैरह अच्छा था, तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ एंड इट्स हैपनिंग, मुझे लग रहा है कि कुछ हो रहा है, मैं हो रोज़ आ रहा हूँ, जाएगा। मैं जा रहा हूँ। हाँ। एंड in my first month हम्म। of registering myself as an ACC student, I give an exam, ठीक है। F2 exam, and I pass it. This is the first academic achievement I had since I did my second year. And this is how many years after? This is 2.5 years after. अच्छा, जब अचीवमेंट मिली तो फिर ये तो नहीं सोचा कि अल्लाह इतने टाइम बाद मिली है, या अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया थोड़ा? Celebrate, I knew that that was not the right time to celebrate. अच्छा। I had to go a long way. I knew. लेकिन आई फील लाइक स्मॉल स्टेप्स अलोंग द वे Yeah. really motivate you towards your cause. मैंने उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट उतना किया जितना करना चाहिए था। ठीक है। एक सेलिब्रेशन वो होता है ना कि उसके हैंगओवर में दूसरा नहीं होता। Yeah, सो yeah. मैंने ये बात सोची थी कि ये इसको सर पे नहीं करना, बिकॉज I have a long way to आई go. हैव अ लॉन्ग वे टू गो। एंड मैंने अपने ACCA को इन 3 to 4 डिफरेंट पीसेस में बांटा हुआ था। ठीक है। F4 तक मैंने एक स्लॉट रखा हुआ था, दिस इज माई वन पीस, once I'm going to do it, then I'm going to celebrate. Okay. Then I'm going to do the other 2 papers, then the other 2, and then the professional ones. तो ये था, मैंने कहा था I'm going to, एक तो complete strategy होती है, फिर एक छोटे plans होते हैं। बिल्कुल। तो I did my timeline कि this month, मतलब कि I want to do 4 CBEs, F1 से F4 तक, there are 4 CBEs, and जो हर महीने होते हैं, लेट्स से मैं अगर 5 महीने पे भी कर लूँ, यूजुअली लोग 3-3 महीने पढ़ के करते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने BCom भी पढ़ा है एंड आई एम अ स्टूडेंट जिसने ACC, जिसने CA के अकाउंटेंसी वगैरह के FAR1 वगैरह भी पढ़ा हुआ है, तो मुझे उतना टाइम नहीं लेना चाहिए, राइट? मैंने अपने आप को मैं कॉन्फिडेंस देता था। एंड सर गुलाम हुआ करते थे जो वर्कशॉप्स कराते थे, वो मैंने वर्कशॉप्स में उनसे सीखा। सर माजिद की वर्कशॉप्स लेता था मैं, तो भले मैंने ACCA में अकाउंट्स के पेपर पास किए F3 वगैरह के, लेकिन मैंने पढ़ा उनसे, राइट? आई स्टिल, मतलब ये कैसा फ्यूजन है इन तबानीज कि एक ACCA का लड़का जिसने ये वाले पेपर्स अभी मतलब खुद सेल्फ स्टडी पे पढ़ रहा है, वो इनका जो क्या कहेंगे उसे, क्रेडिट है मैं CA के टीचर्स को दे रहा हूँ। फिर आगे जो ACCA के टीचर्स हैं मैं उनको भी इन माई जर्नी में ड्यू क्रेडिट दूंगा। सर एजाज को मैंने देना शुरू कर दिया। सो F3 F2 पास करता हूँ मैं, नेक्स्ट मंथ आई पास F3 एंड द अदर मंथ आई पास F1 एंड द अदर मंथ आई पास F4, क्योंकि वो लॉ है और लॉ हमने द ग्रेट तनवीर खत्री से पढ़ा है, तो कैसे मतलब पास नहीं हो, मतलब ठीक है हो गया लाइफ में, ज़िंदगी में एक बार, बार बार थोड़ी करने देंगे। तो सर तनवीर के साथ खाने खाए, नाश्ते किए, ज़ाया तो कहीं तो सर को भी हम वो करेंगे ना कि नहीं सर आपके बच्चों ने लॉ पास किया। सो दैट्स हाउ आई डिड माय 4 पेपर्स। ठीक है। एंड नाउ आई वाज सेलिब्रेटिंग। अच्छा बस अब तो नो गोइंग बैक। अब हो गया, लेकिन अगेन वही बात, हैंगओवर, F6 फेल हो गया। F6 पहला अटेम्प्ट में दिया था? पहला अटेम्प्ट था। ओके। यहाँ पे अच्छा वो फेल होना ज़रूरी था, क्योंकि मुझे ये वहाँ फील हुआ कि हम जब भी एक पाथवे से आते हैं ना, हम अगले पाथवे को उसी की तरह करते हैं। Why did I fail my CA? क्योंकि मैंने उसको सेकेंड ईयर जैसा समझा। ओके। एंड why did I fail my F6? मैंने उसे F4 तक समझा, CBEs तक समझा कि इसको MCQs पढ़ूंगा, पास किट्स सॉल्व करूंगा, I'm halfway through, नहीं, फिर I was like okay,
नहीं इसको पूरा पढ़ना है, इसको बुक रीडिंग अलग करनी है, इसके वेबिनार्स अलग लेने हैं, और इसकी किट्स एमसीक्यूज तो सॉल्व करने ही करने, लेकिन वो सिर्फ एमसीक्यू की हद तक सॉल्व नहीं करना, आई हैव टू नो ऑल द वे डाउन कि ये किस तरह सॉल्व हो रहा है, पूरा पढ़ेंगे तो 50% आएंगे। पूरा। एंड इन द वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट आई पास्ड 2 of my papers. Okay, I passed F6 and F7. wonderful. Yeah, Aliza, I started my ACCA in February 2018, and in December, I am 6 papers passed. 6 out, Wow. 6 out of 13 papers. Like I'm almost half of my Halfway done. ACCA is done in my first year. And but still, until it's not done, it's not done. Yeah, वो तो है। राइट आप अगर वैसे एक नॉर्मल केस स्टूडेंट हो ना, तो उसके लिए ये चीज़ है कि मैंने आधा कर दिया, लेकिन ये मेरे लिए आधा आधा नहीं, बिकॉज आई एम कम्पीटिंग विद माई फ्रेंड्स, आई एम कम्पीटिंग विद माई सिस्टर। Okay, like throughout your journey, you've always mentioned these few aspects कि your friends are here, your sister is here. So why did you always feel the need to compete? Why wasn't it? Not compete. I wasn't competing with them. All of us were in different studies, right? But you say na that your net worth, no, the saying goes that your network is your net worth. अगर मेरा नेटवर्क ऐसा होता ना जिसमें लोग पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं होते, तो मैं भी पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं होता। अच्छा। दिस इज अ क्रेडिट टू देम कि वो लोग अपनी जिंदगी में अच्छे थे, तो मैं अच्छे होने की कोशिश करता था। अच्छा, this was just you assessing yourself. This was me being inspired from them, not competing them. Okay. That was an inspiration from my friends, from my sister, right at that point. ठीक So है। now अब मैं जब फर्स्ट पहले साल में I do 6 papers of my ACCA. Now I start taking the bigger step. जब ACCA के बड़े papers आ रहे हैं, and अब तो मुझे यहाँ पे ये फीलिंग आना शुरू हो गई कि there is no hard times gonna come again. अब तो गया, अब तो सही है, मैं भी इंसान बन गया हूँ, अब तो पढ़ाई भी करता हूँ, सब करता हूँ। फिर अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी में एक और पेपर भेजा, एंड जितने सस्पेंस के साथ आप बता रहे हैं ना अब सोचे आई लिव्ड दैट। सही है। एंड दैट एग्जाम, अच्छा मैं इस पर शर्माऊंगा नहीं, जहाँ मैं अपनी इतनी तारीफ कर रहा हूँ कि बाकी पहले साल में मैंने 6 नहीं, तारीफ तो नहीं, आपने सेटबैक्स भी डिस्कस किए हैं। वहाँ पे आई फ्लंक्ड दिस पेपर 4 times straight, लाइक 5 दफ़ा मैंने ये पेपर दिया। आई एम नॉट गोना नेम इट द पेपर, क्योंकि हो सकता है पीपल जो अभी अटेम्प्ट में दे रहे हो डिमोटिवेट हो जाए, ऐसा नहीं, दैट्स गुड, ठीक है। बट स्टिल देयर वाज दिस वन पेपर जो कि मैंने, और एफ का था, और मैंने स्किल्स का था, मतलब हाँ स्किल्स का था, मैंने 5 दफ़ा दिया, राइट, बिलीव मी। एंड बट वैसे ये 1.25 साल होता है, बट द गुड पार्ट कि उस 1.25 साल में अगर ये 5 अटेम्प्ट्स हैं मेरी, तो उस पेपर के साथ कोई ना कोई एक पेपर लाजमी पास हुआ। अच्छा, ओके। सो F5 पास हुआ। अच्छा नहीं, डोंट नेम इट, फिर पता चल जाएगा। हाँ, फिर एक और पेपर पास हुआ, फिर SBL भी पास हुआ, SBR भी पास हुआ। अलीजा, आई वॉज अ फाइनलिस्ट फर्स्ट, और वो पेपर फेल हो गया। मैंने उस पेपर को एक अटेम्प्ट हुई थी जो कोविड से पहले लास्ट अटेम्प्ट थी, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, तो मैंने 3 पेपर्स दिए थे उस अटेम्प्ट में। वो निकल गया। आई पास्ड SBL, ओह माय गॉड, आई पास्ड SBR, but I flunked that skills paper. I say this jokingly कि मैं फाइनलिस्ट पहले बना, पार्ट क्वालिफाइड बाद में बना। And that is true. Right? Imagine. तो फिर in the very next attempt I gave that exam. अकेले? अच्छा नहीं, I gave that exam with AAA. अच्छा। But क्योंकि वो पहली अटेम्प्ट थी जिसमें रिमोट एग्जाम्स हो रहे थे पहली बार, तो उसमें हो रहा था कि अगर कोई टेक्निकल इशू आ रहा था तो वो पेपर कैंसिल हो रहा था, एंड ACCA इज गोना रीइंबर्स योर फीस, क्रेडिट योर फीस बैक टू योर अकाउंट, एंड फिर आप उसको कर सकते हैं। तो जो AAA का पेपर था उसमें कुछ टेक्निकल इशू आया, वो पेपर मेरा बंद हो गया या स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो मैंने तैयारी 2 की थी, लेकिन जो 2 वाला पेपर था मैंने दे दिया। ठीक है। एंड फाइनली फिर मैंने सुख का सांस लिया कि क्लियर हो गया। अच्छा, फिर AAA तो फिर काउंट ही नहीं हुआ? हाँ, फिर वो अगले अटेम्प्ट में दिया। ठीक है। So you were done with 2 exams अभी, नहीं 2 exams were left. Yeah. ठीक है। And
we were coming back from COVID, and that is the point ke now I want to start working, ठीक है. right? Because अच्छा हर पॉइंट पे when people are doing ACC ना जिनके 4 पेपर रह गए 5 पेपर रह गए, there was this one thing I used to tell myself कि जितना ACC आपका रह गया ना उससे ज़्यादा आपने कर लिया. I used to tell this to myself, right? I like I used to motivate myself. I knew कि मुझे ही करना है, right? मैं दूसरों को कर सकता हूँ तो मैं अपने आप को भी कर सकता हूँ. तो I used to tell myself. और ACC के हर पेपर पे पहले मुझे ये फीलिंग आती थी कि ये नहीं होगा. फिर अगला थॉट मैं खुद लेके आता था कि यार जितना कर लिया है ना उससे कम रहता है, जितना करना है उससे ज़्यादा आपने कर लिया. सो वो तिनका तिनका करके जो है ना मैंने ये घर बना लिया. एंड आई वॉज डाउन विद 2 पेपर्स प्रोफेशनल के. आई वॉन्टेड टू स्टडी, नो आई वॉन्टेड टू परस्यू माई प्रोफेशनल थिंग नाउ. ठीक है. तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू प्लेसेस ओके. एंड गेस वेयर आई लैंड माई जॉब. जो मेरी पहली जॉब है, वेयर डू आई लैंड? आई लैंड एट PwC. वाओ. राइट? वाओ. वाओ, मुझे ऑनेस्टली इतना कुछ नहीं पता था. आई एम गेटिंग टू नो सो मच अबाउट यू इन दिस पॉडकास्ट एंड मेजर रिस्पेक्ट So फॉर यू. during that time, अच्छा बस अब मैंने बोलना है ना. हाँ हाँ हाँ, So now you're done with your ACCA. I'm done, I'm बस done. अब तो जॉब भी लैंडेड, Job आप भी भी आ landed. रहे हैं, सब आ Yeah, रहे हैं, सब सब, अच्छा लग रहा है. सब, ठीक है. सब. अब आप मुझे ये बताएं कि देयर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ जिसके बारे में आई गॉट टू नो एंड वी मेंशन्ड इन द इंट्रोडक्शन एज वेल. तो from you being interested in university events and you being in the public eye and इन सब चीज़ों में भी एक बहुत मेजर इंटरेस्ट रहा है. एंड देन you're a writer, a narrator, a public speaker, like इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं पर्सनालिटी के. Yeah. तो कहीं ना कहीं ACC करते हुए ये फील तो नहीं हुआ कि आई हैव लॉस्ट दैट बिट ऑफ माई सेल्फ, या फिर आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू दैट सेल्फ जो मेरा एक एक्सट्रोवर्ट वर्जन है या जो मेरा क्रिएटिव साइड है, वो वाली साइड कहीं खो गई और कहीं दोबारा आई आपकी लाइफ में, या फिर डिड यू लेट गो ऑफ इट फॉर द टाइम बिंग? क्योंकि ऐसा होता है कि पढ़ाई करते टाइम आपको ये बोला जाता है कि अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर सेल्फ को ज़रा शट इट डाउन, अब सीरियस हो जाएं, पढ़ाई कर लें, ये सबको सुनने को मिलता है, मी इंक्लूडेड. तो व्हाट डू यू थिंक कि उस वाले एस्पेक्ट में डिड यू कंटिन्यू योर एक्स्ट्रा करिकुलर्स? क्योंकि यू हैड अ मेजर कंट्रीब्यूशन इन तवानीज़ लिटरेरी सोसाइटी एज वेल. तो वो साथ साथ चलता रहा या फिर उसको ब्रेक किया, या फिर आपको ये फील हुआ कि बिकॉज आप इतने डिवाइडेड हैं बिटवीन सी एग्जाम्स एंड वर्किंग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो फिर हाउ डिड दैट गॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू योर लाइफ? With that, I feel that I survived because of that. Really? Yes, because with my ACCA there is this whole journey, right? With like the 40 shields I have at home, right? The videos on the internet, the good videos, वो speech वगैरह की channel की, and some of the content, some of the live performances जो कि मुझे अक्सर ये होता है कि उसकी वीडियो नहीं है, बट खुशी इस बात की होती है कि जो लोग उस वक्त थे वो याद करते हैं कि एंड अच्छा है कुछ एक्सक्लूसिव हैं वो लोग जिनको वो पता है कि बलाजवान परफॉर्म्ड दैट डे, राइट? आई सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ दैट. अ लॉट ऑफ पीपल हु आर डन एंड डस्टेड फ्रॉम लाइफ, उनको वापस आने के लिए दे नीड समथिंग ऑफ देयर ओन, समथिंग ऑफ देयर ओन. एटलीस्ट कि अगर मुझसे कोई बात करे कि पेपर फेल हो गया तो उसके बाद एक ना वो शुरू हो जाती है कि ऐसे करो, दे गेट डाउन. फिर द गुड पार्ट क्या होता था, एंड आई सॉ योर स्पीच वापस, राइट? दैट वाज द पॉइंट. आई वाज इन गेम अगेन. आई टेल यू हाउ. आई फ्लंक्ड माय सेकंड अटेम्प्ट एंड ऑफ. सो अगेन एक थोड़ा सा सोक का माहौल होता है. अ लॉट ऑफ योर फ्रेंड्स आर गोइंग थ्रू दैट टाइम. अ लॉट ऑफ योर पीपल आर नॉट हैप्पी अबाउट थिंग्स. At that point, I was told that we want you to do a speech. ठीक है. And I was like, no, because I don't feel nice doing it क्योंकि मैं fail हूँ and I want to study, मुझे time देना है. तो I was told कि नहीं, just write it and some other guy will do it. I was like, okay, nice. Just because I'm saying, I'm not doing it. Okay. So you can help writing it. I said, okay. I wrote it.
एंड देन आई वाज टोल्ड बाय माय फ्रेंड्स कि यू रोट इट. एंड उसने कहा अच्छा सुनाओ. मैंने सुनाई एंड दैट रूम दोस ऑफ पीपल स्टार्टेड लाफिंग कि इतनी अच्छी लिखी है. एंड दे आर लाइक दैट नो बडी यू डिजर्व टू Do डू it इट योर yourself. सेल्फ. एंड आई सेड नो. ओके अच्छा, वील उस सी. वाले माइंडसेट में आप अभी मतलब आप थे कि हाँ. अच्छा नहीं पढ़ना है, आप या एक्स्ट्रा करिकुलर साइड हो, ठीक है. या बट इट वाज दिस इवेंट. आई डिड माय स्पीच. आई वन दैट डे. एंड विनिंग के साथ अच्छा उस पॉइंट पे ना ये नई चीज़ शुरू हुई थी दैट दे यूज्ड टू कॉल पीपल ऑन टीवी अच्छा. on in transmissions that you do this nice speech on live television with a lot of celebrities around there. I was like, उस दिन I won that and I was called on Geo Okay. that do this. Then I was called on Hum. Then I was like, it all like चलता रहा ना. So my curricular activities like it saved me. बहुत से लोगों को खराब करती हैं. To बट me, वो आपका एस्केप था ना. मेरा स्केप था फ्रॉम दिस वर्ल्ड. या. बिलीव मी, मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आया था कि हम अच्छा इट वाज मैं एक अलोन नहीं था. कुछ चीज़ें था जो मैं अपने हिस्से की खुद करता था लेकिन सिनर्जी इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था हमारा तबानीज़ में. मैं जो कहता था ना कि मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ चाहिए थी, वो लाइफ हम लोगों ने उस पॉइंट पे तबानीज़ में क्रिएट की. वाओ. द पीपल जो इस पॉइंट पे थे कोविड से थोड़ा सा पहले 3-4 जो साल थे, अगर उस ज़माने के लोग आप पूछें तो देयर गोना से इट कि उस पॉइंट का जो टीएसए था. अच्छा एन आई सी के आजकल के जो नए बच्चे हैं उन्होंने इस चीज़ को कैरी ऑन रखा. द कम्यून्स आई हैव गॉन टू एंड दोज आर वेरी नाइस एंड दे आर डूइंग इट राइट. बट we did it, we learned from our seniors. जिस तरह like the first ever drama I was doing at Expo, there was this senior of mine who won a competition, drama competition, an year back. It was Rida. And those who don't know, इनकी बहन है वो. We were in the same room. We were in the same room. And where you are, I was there, and where I am, Rida was here, and she was saying कि do this, do that. So तवानीज़ में एक सीनियर्स का अपने जूनियर्स के साथ एक बड़ा अच्छा रिलेशन रहता है क्योंकि सबको पता है कि अगला बंदा किस चीज़ से गुजर रहा है. एग्जैक्टली. राइट. सो अब भले वो को करिकुलर साइड हो या भले वो एकेडमिक साइड हो या भले वो जॉब इंटरव्यू वाली साइड हो. राइट. सो एट दैट पॉइंट आई वॉज वो ड्रामा किया, हम लोग जीतना शुरू हुए. देन आई गॉट अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स मलिक एंड अजमल. सो वी स्टिल कॉल आवरसेल्व्स बैमज़ैट क्योंकि हम तीनों का सिनर्जी लेवल इन पर्टिकुलरली इन ड्रामास बहुत अच्छा था. ओके. Right? Like I had a voice, I could narrate, I could do that. Ajmal had a sense of humor. Malik had a very nice sense of screenplay and a very nice discipline. Usually artistic side पे जो लोग होते हैं they're not disciplined. Yeah. देर से आएंगे देर से करेंगे. But Malik was the person that used to be. Kept charge of that. Yeah, and he had a very nice screenplay sense कि ऐसे enter होंगे ऐसे करेंगे. Right? And had that energy. तो we started doing dramas. हम एक्सपो जीते. हम लोग we started doing things. Ajmal started doing stand-up comedy. Okay. Right, yeah, from there. And Malik was doing dramas with us and I was doing speeches. Yeah. Right? फिर ये तो ड्रामा वाली साइड थी. And then जो speeches वाली साइड थी जो कि जिस पे हम लोग पूरा कराची पूरा पाकिस्तान कैप्चर कर रहे थे, that was me, that was Rafe, that was Ali, that was Ramis, that was Zegam, that was Gayur, Anas, Nabil, Roy, Umair. ये सब तबानीस के हैं. ये सब था. ये this is the and Ajmal, this is the founding body of TLS which I named. Wow. और ये कितने साल पुरानी बात है? That's 2017 और 18 max. Okay. Because हम लोग सब अलग अलग पॉइंट्स पे अपना अपना पर्सनल स्पीचेस कर रहे थे. एक पॉइंट ऐसा आया 2018 में कि हम सब जुड़ गए. MUNs वाली साइड नबील he took care of it. सबको divide हो गया. Humorous speeches in Urdu side, I took care of that. Debates, Ali took care of that. Urdu speeches, serious ones. And under the banner of Under TLS. the banner of we created TLS. And Ramesh took care of that. English and Urdu debates, Rafe took care of that. मतलब Rafe was a जानवर था कि he literally went in a competition without any preparation, I guess, and वहाँ पे उर्दू और इंग्लिश दोनों डिबेट्स चल रही थी. उसने अपना नाम लिखवाया. He won a trophy in both and he came out.
you know, undisputed heavyweight champion of the world. Abdul Rafi is that. And We need to invite him for our next yeah, podcast. yeah, he must be enjoying some bakra in Khubar. He's in Khubar. अच्छा. So, अच्छा, whenever me and Rafi, we are best friends, and me and Ajmal, we are best friends. Well, हम लोग सब बहुत अच्छे दोस्त हैं. So again, it started like that. So we were doing trips to Karachi. हम लोग, we were going to UT Taxila, we were going to Faisalabad, we were going to Lahore, we were going to Sindh, and we were winning every place, right? We were और doing इस सब stuff. में ACC साथ चल रहा है. चल रहा है, literally चल रहा है. Wow. मतलब And- you can do पढ़ाई and extracurriculars hand in hand. या एंड मेरा तो एसी से चल रहा है, मेरे इन दोस्तों की फर्म चल रही है. फिर भी वो टाइम निकाल फिर भी के वो कर रहे हैं. just to feel whole and just to feel Yeah. close to And themselves. like if you're passionate about things, you can do it. फिर तो आप जबरदस्ती टाइम निकालते Yeah. So at that point, we started exploring Karachi in that way. We were making a name. और जब हम इस चीज़ में अच्छे हो गए ना, then फिर ये चीज़ें आई कि ad लिख लो, ये कर लो, वो कर लो. So there is a lot of things that we all did, but it's not known that we did. Yeah. फिर तो opportunities खुल गई ना Yeah. आपके लिए. Yeah. Then in 2019 there was this expo, and there are 12 or 15 competitions in that. We did around, we won 10 or 12 that day. That day. That day, believe me, ड्रामा हम जीते, बिजनेस आइडिया हम जीते, शॉर्ट फिल्म हम जीते. अच्छा, और पार्टिसिपेट सब में किया, ये नहीं सोचा कि अच्छा नहीं ये दिस इज आवर एक्सपर्टीज Those हम were इस पे. different people participating. Okay. पेंटिंग में हम जीते, सिंगिंग में we did good, right? तो बहुत सारी जगहों पे, और TLS बन गई थी तो उसका मकसद ही ये था to gather talented people. We were at 100 members in our like first 6 months, 7 months, like crazy scene. Then COVID happened, and while COVID lasted for like year and a half, 2 years na, उस point पे a lot of people qualified, Okay. started working. A lot of people left. A lot of people got married and like didn't had time to do it. So फिर we didn't get our send offs that way. But when new people came But along, then new people came this is an along and- ongoing journey, and TLS is still in its form right now, Yeah. and students are still a part of it. Yeah. So that public speaking, that thing, that helped me in a lot of ways. That has helped me in interviews for sure. Right? मतलब extracurriculars are just as important as your academic career. That has helped me in presentations at office. That's had helped And me in I meetings. also feel like that is the aspect that makes you you, and Yeah. that makes you identifiable. Because Yeah. ACCA तो वही बात है ना, सब करते हैं. Yeah. But what makes you you? You know, what Exactly. makes Balaj Balaj? Yeah, that is what makes me. Yeah. Believe me. Like if even I didn't have ACCA, You would have this. तो obviously मेरी ये जो पढ़ाई थी, फिर जॉब थी, और फिर ये सब वाली लाइन नहीं होती. पढ़ाई is important for that. Yeah. लेकिन I still had, मेरे पास वो एक पहचान होती. लेकिन मैं कुछ और कर रहा होता. I'd be a filmmaker. I still want to be a filmmaker. I hope you do become a filmmaker. I do someday. I'll be a Inshallah. filmmaker. But I'm making Let's reels see. nowadays. Okay. With nice reels. So this has been a Follow very me, Balash.aman. Okay, this has been an electrifying conversation indeed. Thank you. But I think I would like to end on this note that there is so much going on. Yeah. There you are divided in so many aspects, and बहुत कुछ है जो करना है, बहुत कुछ है जो कर लिया है. You're in that phase where you're looking back and looking ahead as well, and that is a wonderful position to be in. लेकिन if you think about settling, and if you think about, because वही बात है ना कि you found yourself and you existed because of those extracurriculars and because of those so many aspects in your life. लेकिन if you want to settle and if you do wish of settling, तो उसमें से आप कोई एक चीज़ चूज़ करेंगे कि अच्छा नहीं, I'm gonna, you know, be 60 and sip on coffee with this particular thing, या फिर you want to settle with all of these things combined because all of these things make you. So what do you have to say for that? I think all of these things make me what I am. Right? If I had one of these things, शायद मैं
उस एक चीज़ को लेके भाग रहा होता, चल रहा होता. And I would really want to do that. ठीक है. Like having a lot of things on your head, a lot of things on your plate is Exhausting. exhausting sometimes, because and you're passionate about everything. तो वो चीज़ like 6 months you want to do this, 6 months you want to do that. So this is a feeling. लेकिन अभी तो पिछले बहुत टाइम से I'm passionate about the work I'm doing right now. Okay. ठीक है, and I want to grow in that. ठीक है. Basically the work, the boring Yeah. work, accounting work, and finance and stuff. So abhi I want to do that. ठीक है. But still, once I'm a lot more settled in this, there will be a time that I'm gonna buy a camera and I'm gonna explore the world. So there is gonna be a comeback. Yeah, I can see that thunder again. You should. And you should take it as inspiration. Yes. All right. I'll Thank be you back. so much. We Thank hope you. you to be back. And maybe 10 years from now, we're going to invite you again Yeah. and see how life is going then. Yeah. Thank you so much for this conversation. And thank you for being here. It has been absolutely wonderful. Thank you. Thank you for being a great host. Oh, thank you. Thank you. All right. With that, I'm going to leave you guys on that note, and I'm going to be back with another one, a yet exhilarating one. So stay tuned and